Hello, now I welcome all of you for the lecture number 2, topic thermodynamics. Now we'll continue from the previous class. In this particular class, we are going to start with an internal energy. What is internal energy? See, the total amount of energy present in any system, that is sum of rotational energy plus vibrational energy plus translational energy plus electronic energy okay. Apart from this, there is a other energy also, nuclear potential. The sum of all the energy is called as a internal energy of a system. Now if you got a 1 mole of two different compound, it is 1 mole of, now we got a 1 mole of carbon dioxide and 1 mole of SO2, that is sulfur dioxide, at a NTP मतलब हो गया नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये दोनों मॉलिक्यूल का ना इंटरनल एनर्जी डिफरेंट रहेगा. इंटरनल एनर्जी विल बी डिफरेंट. आर यू गेटिंग? एनर्जी विल बी डिफरेंट. सो इट डज नॉट मीन्स दैट इवन अगर आपने टेम्परेचर भी डिफरेंट कर दिया सेम मॉलिक्यूल का, तो वो इंटरनल एनर्जी डिफरेंट कर देगा सेम मॉलिक्यूल का. अगर CO2 का ही आपने इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहा एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. सो कैरेक्टरिस्टिक्स of internal energy. Now see, first of all, internal energy, it is a, we have seen extensive and the intensive property. It is a extensive property. It does not depend upon the amount of matter. And then it is a state function. Internal energy is a state function, and we have seen what is a state function and what is a path function. You reach at particular state, that is mainly because of the responsible parameter, that is a state variable. So any particular system have achieved any particular state, that is mainly because of its state variables. Okay, that is called as a state function. And then for any cyclic process, for cyclic process, internal energy change जो होता है वो होता है 0. And after that, change in internal energy is calculated by a very important equipment that is called as a bomb calorimeter. See, अब ये बॉम्ब कैलोरीमीटर जो ये अलग से अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट मैं जस्ट बता देता हूँ. चेंज इन इंटरनल एनर्जी is calculated by bomb calorimeter. Now तो बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसा लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा T इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन the mass, amount of substance we are taking for combustion. This is a very important formula for calculating the change in internal energy for any particular transformation during the any system undergoing transformation. C is the specific heat, that is the heat capacity of the particular system. Delta T is a change in temperature, and MW is a molar mass of a substance, and M is the amount of substance you have taken. यहाँ तक क्लियर है? So this is all about the internal energy of the particular system. Now we'll talk about the next one, that is
हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क जो होता है ना, ये एनर्जी का दो फॉर्म है। यू कैन कन्वर्ट ऑल द अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू हीट, बट यू कैन नॉट कन्वर्ट ऑल अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू वर्क। आर यू गेटिंग? जैसे दिमाग में फिट कर लो, एनर्जी का दो फॉर्म होता है। एनर्जी इज हैविंग टू फॉर्म, is having two form, heat and work. Okay, so work is a way through which energy is getting spent. I can say that वर्क जो एक ज़रिया है जिसके थ्रू एनर्जी को हम लोग स्पेंड करते हैं। तो आप सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, एंड वाइल यू कैन कन्वर्ट ऑल द एनर्जी इनटू हीट। अच्छा, हमको देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, different types of work. So now the different types of work in this particular, यहाँ पे हमको एक के ऊपर ही फोकस करना, बट उसके साथ में हम लोग दो और जानेंगे, जस्ट उसको सीखने वाले नहीं है। द फर्स्ट वन इज़ द ग्रेविटेशनल वर्क, ये आप फिज़िक्स में पढ़ लोगे। ग्रेविटेशनल वर्क का फॉर्मूला होता है mgh, mgh. After that we got a electrical work, the formula is charge into potential, q into v, दोनों का प्रोडक्ट होता है चार्ज into potential. After that the third one जो हमको यहाँ पे फ़िलहाल सीखना है, that is a मैकेनिकल वर्क। सो मैकेनिकल वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम dV डेल्टा V। तो ये फ़िलहाल तीन तरह का हमारे पास वर्क है, ग्रेविटेशनल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड द मैकेनिकल वर्क। सो वी आर गोइंग टू हैव अ टॉक ऑन द मैकेनिकल वर्क। सो विल सी इट, एक्सप्रेशन फॉर PV वर्क। तो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। नाउ इफ़ यू गॉट अ सिस्टम, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा, एक सिस्टम है, आपके पास एक सिलेंडर है, आपने यहाँ पे एक पिस्टन लगा के रखा है, विच इज़ फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। पिस्टन जो है फ्रिक्शनलेस है, इसकी कंडीशन है, एंड वेटलेस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होने क्या वाला है, इसके अंदर का कुछ तो वॉल्यूम है, मान लीजिए वो हमारा वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम V ले लिया हमने, और इसका प्रेशर अंदर का P ले लिया। अब ये बाहर जो है P एक्सटर्नल है और अंदर आपका इंटरनल वॉल्यूम है। अच्छा, अब इसको हम लोग केस ये एज्यूम करेंगे, व्हेन internal pressure is slightly more than external pressure, ये हमने एज्यूम किया है कि अगर इंटरनल प्रेशर जो है वो स्लाइटली जो है एक्सटर्नल प्रेशर के कंपेयर में ज़्यादा है, सो होगा क्या, देन पिस्टन विल मूव अपवर्ड, ठीक है। पिस्टन जो है अपनी जगह से कहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो मान लीजिए वो यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ आ गया, so this is the new state of
न्यू पोजीशन फॉर द पिस्टन। तो अभी वो थोड़ा सा उसने काम किया है, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और वो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा सा, तो उसको मैंने DL समझ लिया। DL इज़ द small amount of displacement happening when we have a little bit more pressure inside the system. So therefore change in volume क्या हो जाएगा, पहले का वॉल्यूम जो भी था दैट इज़ वॉल्यूम जो था एरिया इंटू आपका जो नया वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सो A इंटू एरिया, A आपका पिस्टन का एरिया है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड दिस इज A इंटू DL। आर यू गेटिंग? सो दिस इज़ अ न्यू वॉल्यूम। अच्छा, आपने पढ़ा होगा प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सो देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ तक क्लियर है? नाउ वर्क इज़ नथिंग बट वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस और ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट, आई गेस दैट डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ मैं, इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो होता है प्रेशर इंटू एरिया है, तो आपने फोर्स की जगह पे प्रेशर लगा दिया P एक्सटर्नल इंटू आपका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ चेंज इन जो आपका दैट वाज द प्रेशर की जगह फोर्स इंटू एरिया आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका ये था DL था इंटू DL। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो प्रेशर जो है वो एज इट इज़ रहेगा, A इंटू DL क्या हो जाता है, A इंटू DL जो है वो हो जाता है योर वॉल्यूम, सो इट बिकम्स P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पे जो वर्क बन रहा है आपका दैट इज़ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। सिंस द पिस्टन इज़ मूविंग अपवर्ड, मतलब सिस्टम ने काम किया है, तो वहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी है ना सिस्टम की वो कम होने वाली है। तो उसको हमको पता कैसे चलेगा, नेगेटिव साइन से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये थर्मोडायनामिक्स का साइन कन्वेंशन है। तो इसका जो ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगा W दैट इज़ वर्क इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये आपका इक्वेशन है फॉर PV वर्क इन केस ऑफ एक्सपांशन। अगर ये कॉम्प्रेस्ड होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। दैट इज़ व्हेन वर्क इज़ गेटिंग डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। ये दो चीज़ें होती हैं, आपको दिमाग में रखना। व्हेन वर्क इज़ गेटिंग डन ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम ने काम नहीं किया है, सिस्टम के ऊपर काम हुआ है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा W का साइन। सी साइन कन्वेंशन क्या है यहाँ पे, साइन कन्वेंशन इफ़ work is done on the system, work is done on the system एक ही हो गया, और work is done by surrounding, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो आपका जो W का साइन होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, इफ़ इसका रिवर्स है, इफ़ वर्क is done by the surrounding, if work is done on the surrounding, तो काम तो आपका सिस्टम करने वाला है। और इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क इज़ डन बाय सिस्टम। तो ये केस में आपका जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर है? साइन कन्वेंशन है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन एंड एडियाबैटिक एक्सपांशन अंडर द टू कैटेगरी दैट इज़ रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, सी आइसोथर्मल एक्सपांशन।
आइसोथर्मल एक्सपांशन दो टाइप में जाता है, दो कैटेगरी में जाता है, रिवर्सिबल में जाता है और इरिवर्सिबल में जाता है। तो पहले मैं इन जनरल इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सी फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन दे कैन आस्क यू कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू। ठीक है, ये मैं डिस्कस करता हूँ। आइसोथर्मल मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, प्रोसेस विच इज़ हैपनिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आर यू गेटिंग? व्हेन द प्रोसेस इज हैपनिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर dt, चेंज इन टेम्परेचर जो है आपका वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और उसमें इंटरनल एनर्जी का भी कुछ चेंजेस नहीं होता है। नो सी कैलकुलेशन ऑफ du हमको पता करना है, इसके साथ साथ में हमको कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच भी फाइंड आउट करना है। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने सुना ही होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से हमको यहाँ पे फाइंड आउट योर Q हीट एंड W। सो ये तीन चीज़ें हमको देखनी है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर। सी इन एन आइसोथर्मल process, the temperature of the system remains constant throughout the process. The temperature remains constant throughout the process। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो होती है वो फंक्शन होती है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। सो आई कैन से दैट इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहा है तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी नहीं चेंज करेगी। तो बोलने का मतलब dt जो है ज़ीरो होता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड du भी ज़ीरो होगा। बात समझ में आ रही है? बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जस्ट यू कीप इन माइंड बिकॉज दे कैन आस्क यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Now H, change in enthalpy. You must have seen the equation called as H equals to U plus PV। ये आपका इंटरनल एनर्जी और इंथाल्पी का रिलेशन है। इसमें अगर इसको मैंने चेंज के टर्म्स में लिखा, सो देयरफॉर डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे जो है PV बराबर हमको पता है क्या होता है, nRT होता है। सो देयरफॉर डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। नाउ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एज वी आर डिस्कसिंग, तो ये जो है ना बेसिकली R और N, तो आपका अगर 1 मोल है तो इसकी तो नंबर ऑफ मोल्स आपका फिक्स ही होता है, R आपका कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा T ये बन जाएगा। सो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा T। तो ये तीनों में कैसा है ना कि सब मिला जुला के ज़ीरो ही हो गया। डेल्टा H की वैल्यू हमको पता ही करनी है, इंटरनल एनर्जी तो मैंने बता दिया ज़ीरो ही हो जाता है, और चेंज इन टेम्परेचर भी यहाँ पे आपका ज़ीरो ही होगा, तो एंथैल्पी भी ज़ीरो हो जाएगी। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा H इज़ ऑल्सो ज़ीरो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics mathematically of thermodynamics. Now internal energy equals to Q plus W. So here we got the delta U as a ज़ीरो। so अगर डेल्टा U बराबर ज़ीरो है तो आपका therefore Q जो है बराबर W हो जाएगा। आर यू गेटिंग? और इसको मैं माइनस ही कर देता हूँ, तो वर्क जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि द वर्क इज़ गेटिंग परफॉर्म एट द कॉस्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। आर यू गेटिंग? मतलब जो कुछ भी, क्योंकि अगर आइसोथर्मल के टाइम पे सिस्टम ने काम किया है ना, तो उसका जो हीट है वो कम होने वाला है, क्योंकि उसने जो भी हीट लिया था ना उसी हीट की बदौलत उसने काम किया है। तो बोलने का मतलब वर्क इज़ डन at the cost of heat absorbed by the system. So this is about the isothermal expansion, and we got a calculation or how to find out the internal energy
एंड इंथैल्पी Q एंड W. आई होप यहाँ तक ये क्लियर है. नाउ विल गो अहेड विद द डेरिवेशन ऑफ W मैक्स. ये बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझते हैं. नाउ सी, वर्क डन इन रिवर्सिबल isothermal process. This is important. They can ask you its derivation. See, work done. This is work done in reversible. And what is reversible? Irreversible process we have discussed. Isothermal expansion. Now, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो जाए या एडियाबेटिक हो जाए या कॉम्प्रेशन हो जाए, तो ये दोनों में कैसा होता है ना कि वी हैव टू, दैट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. सो वी विल कंसिडर बोथ वन बाय वन. नो, first I'm going to discuss with the work done in the case of reversible isothermal expansion. So for that, consider a gas filled in a cylinder that is and it is and it is fitted with weightless and frictionless piston. Are you ready? So we are just deriving, so we have to write in the same manner. Now, so you are taking a cylinder. This is your cylinder, and initially you had a piston here. So when the piston was at the initial position, there was some external pressure, P external. There was an internal pressure, and here is a gas, and there's a pressure and there's a volume. So the volume is V and the pressure is P of the gas. So now, and the very important thing is, मैं नोट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको दिमाग में रखना है. सिलेंडर जो है ना is not thermally, is not insulated. So what is the meaning of insulation? If it is insulated, the heat will not exchange. Insulation मतलब वो हीट को एक्सचेंज होने नहीं देता अगर रहेगा तो उसका वॉल with the surrounding. So cylinder is not insulated. It is in thermal equilibrium with surrounding. ये आपको जस्ट माइंड में रखना है. नाउ अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता हूँ. अब ये स्टेप 1 में जो है मैंने यहाँ पे बोला, इफ़ आई एम इंक्रीजिंग द इंटरनल प्रेशर, या फिर वो तो मैं कर नहीं सकता इंटरनल प्रेशर, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू जस्ट लोअर डाउन द एक्सटर्नल प्रेशर इनफाइनेटेसिमली बाय वेरी स्मॉल अमाउंट. सो स्टेप नंबर 1 में वी हैव टू जस्ट राइट इट. इफ़ P external is lowered by infinitesimal amount. So what is going to happen? The pressure of the gas will be more as compared to the pressure of the external. So जो piston था ना वो क्या करेगा, expand कर जाएगा. Are you getting? So new volume and
new pressure will be attained in the cylinder. सो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका पहले का वॉल्यूम तो v था, अब ये है थोड़ा सा बढ़ जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है v प्लस dv हो जाएगा, और प्रेशर जो था इनसाइड द सिलेंडर बट अभी से वो कम होने वाला है, सो p माइनस db हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे नया सिस्टम में लेकर जाता हूँ, ये यहाँ से the cylinder is like it was here, so it goes little bit up and it becomes in this particular state. So now it again comes in thermal equilibrium, वो आ ही जाता है क्योंकि दोनों का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो सेम हो जाता है। सो द न्यू प्रेशर जो है, न्यू प्रेशर इज़ p माइनस dp एंड द वॉल्यूम इज़ v प्लस dv। आर यू गेटिंग? तो थोड़ा सा वो बड़ा है। अच्छा, तो ये होने के बाद पिस्टन कहाँ आ जाएगा? piston will be at rest, क्योंकि now the your system is in mechanical equilibrium when the pressure both the side is same, though will it's called as a mechanical। तब आपका जो है यहाँ पे मूव नहीं करने वाला है, बाहर का प्रेशर और इंटरनल प्रेशर सेम हो गया। अच्छा, अब हम लोग स्टेप 2 में क्या करने वाले हैं, सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे। स्टेप 2 में इफ़ अगेन if you remove, if again pressure P external is lowered by same amount, so again the piston will expand by the volume of dV, so again the new volume will be formed and new pressure inside the system will be formed। Are you getting the point or not? तो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। Now see, during the course of this expansion of the piston, new pressure and the new volume is getting attained. Now the system is in equilibrium। अभी जब मैं पहले बता दिया, जो आपका सिस्टम है, सिस्टम is in thermal equilibrium with the surrounding, is in thermal equilibrium with surrounding। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहली बात तो जब ये एक्सपांड कर रहा है ना, तो अंदर की जो हीट है उसकी बदौलत, तो मैं अगर कुछ काम करूँ तो मेरी एनर्जी कम होगी, आई विल लूज़ द हीट। आर यू गेटिंग? सो दैट हीट विल गो आउटसाइड ऑफ द सिस्टम एंड देयर इज़ गोइंग टू बी कूलिंग। ये जस्ट दिमाग में रखना, कूलिंग विल हैपन बिकॉज जो हीट थी वो लॉस हो गई, तो वो लॉस हो रही तभी तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में अटेन आ रहा है। बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर सेम है, सो जो अंदर का टेम्परेचर जो भी हीट है प्रोड्यूस हुई एक्सपांड करने के टाइम में, बिकॉज गैस ने काम किया है, तो गैस काम कर रहा है, तो उसके अंदर का जो हीट था वो लॉस हो रहा है। सो ड्यूरिंग दैट देयर इज़ अ कूलिंग हैपनिंग। नाउ ड्यूरिंग एक्सपांशन pressure is getting lowered and the volume is getting higher। प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है और आपका वॉल्यूम जो है ग्रेजुअली बढ़ रहा है इनसाइड द सिलेंडर। सो वर्क देयरफॉर वर्क डन बाय gas is nothing but a minus of whatever the external pressure is there, so it is nothing but minus P dP, जो भी आपका प्रेशर है P माइनस dP, और आपका वॉल्यूम जो है दैट इज़ dV। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा माइनस P dV, ये हो जाएगा प्लस डी पी डी वी। ठीक है।
So what is going to happen now? Now this parameter, this factor is very small because dp और dv तो negligible था, infinitesimally small amount से हमने इसको चेंज कराया था. तो हम लोग क्या करेंगे, विल इग्नोर दिस वैल्यू. सो आफ्टर इग्नोरिंग दिस वैल्यू, बिकॉज दिस इज़ नॉट, इसकी क्वांटिटी उतनी ज़्यादा है नहीं, मैग्नीट्यूड, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे. सो नेगलेक्ट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा W इक्वल्स टू माइनस P dV. आर यू गेटिंग? नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद इन द लिमिट, आपका जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट है उसके अंडर में हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो हमको पता है इनिशियल स्टेट आपकी V1 है और बाद की जो स्टेट थी वो V2 है. सो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट and फाइनल स्टेट, एज वी नो दैट ऑलवेज इनिशियल स्टेट आपका यहाँ पे V1 बन रहा है और फाइनल स्टेट आपका V2 है. तो इसको उस लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस को बाहर ले लेंगे. सो दिस इज़ V1 V2 P dV. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन ऑफ dV अंडर द लिमिट ऑफ V1 एंड V2 के लिमिट में हमने उसको इंटीग्रेट करा है. तो आपको ये आपने पढ़ा ही होगा, PV इक्वल्स टू NRT होता है, बराबर है. अच्छा, तो अभी हम लोग P बराबर क्या कर देंगे, P बराबर कर देंगे RT अपॉन V. एन आपका 1 मोल है तो उसको नेगलेक्ट करिए. अच्छा, ये जो है P की जगह पे मैंने RT अपॉन V प्लेस कर दिया. P की जगह पे मैंने क्या प्लेस कर दिया, RT अपॉन V. अब ये RT अपॉन V जो है, R और T जो है आइसोथर्मल है, तो R तो गैस कांस्टेंट होता है, T भी टेम्परेचर है, तो उसको आप बाहर ले लीजिए. सो माइनस RT इंटीग्रेशन ऑफ V1 V2 आपका बचेगा यहाँ पे dV बाय V. तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे सो माइनस RT ln V2 अपॉन V1. यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इसको आपने, ये ln है तो इसको log टू द बेस 10 करना है, तो आपका जो इक्वेशन हो जाएगा माइनस 2.303 RT log ऑफ V2 अपॉन V1. ये आपका क्या था, W मैक्स, मैक्सिमम वर्क डन है. ये जो है हम लोगों ने ऑब्टेन किया इन द केस ऑफ एक्सपांशन, जब सिस्टम आपका एक्सपांड हो रहा है तब ये होगा. अच्छा, अब ये V2 और V1 के टर्म्स में दिया है. यू कैन रिप्लेस दिस इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर ऑल्सो, बिकॉज वी नो दैट V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. सो देयरफॉर आई कैन राइट ऑन P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1. तो यहाँ पे V2 अपॉन V1 की जगह पे मैं P1 अपॉन P2 भी लिख सकता हूँ. So this is the maximum work done which we are going to get it in the case of isothermal expansion. Are you getting that too? Reversible. So whenever they are asking calculate the work done, if they have given you reversibly and isothermally. अभी एक्सपांशन होने से पता क्या चल रहा है, एक्सपांशन होने से आपको इधर साइन नेगेटिव आ रहा है, दैट्स ऑल. अगर यही चीज़ कॉम्प्रेस्ड होगी ना तो ये साइन नेगेटिव नहीं रहेगा. तो एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन में एक ही चीज़ का डिफरेंस है. ये डेरिवेशन विल बी एज इट इज़, ओनली देयर इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव साइन फॉर द केस ऑफ कॉम्प्रेशन, बिकॉज कॉम्प्रेशन में काम सिस्टम ने नहीं किया है, सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर किया, तो सिस्टम का एनर्जी लॉस होने वाला नहीं है. तो दिमाग में फिट कर लो, फॉर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन W max will be this much only, there is a no negative sign at all. I hope यहाँ तक clear है. Now we are going to talk about the next one, that is your adiabatic. ठीक है, अब adiabatic की बात कर रहे थे. आई होप ये क्लियर है. Now see, for the adiabatic expansion, अब adiabatic नाम से हमको पता चलता है कि we got some कंसेप्ट नाम से. तो सी, जब आपने आइसोथर्मल बोला तो हमको पता चल गया कि देर इज़ अ टेम्परेचर कांस्टेंट. इन द सेम मैनर फॉर एडियाबेटिक ऑल्सो देर इज़ नो
हीट लॉस, मतलब हीट एक्सचेंज ही नहीं होती है, ये एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम है। नो सी एडियाबेटिक expansion. Now see, by definition of adiabatic process, by definition I can say that no heat is allowed to enter or leave the system, मतलब हीट अंदर बाहर नहीं जा सकती। बोलने का मतलब Q जो होता है वो ज़ीरो होता है, चेंज इन हीट dq आई कैन से दैट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू मतलब Q को भी आप ज़ीरो समझ सकते हो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अभी मैंने अभी बताया था आपका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से यू गॉट अ इंटरनल एनर्जी du इक्वल्स टू Q प्लस W। तो Q जो है वो तो ज़ीरो हो जाता है, हीट एक्सचेंज होती नहीं है, तो Q इज़ ज़ीरो, सो इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू W। बात समझ में आ रही है? तो अगर एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है तो वो उसकी इंटरनल, मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वर्क डन हुआ ना, तो वर्क डन जो हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे हो रहा है। तो जब इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे होगा तो टेम्परेचर सिस्टम का गिरेगा, कम होगा। आर यू गेटिंग? सो W विल बी नेगेटिव इफ़ वर्क इज़ गेटिंग डन, मतलब एक्सपांड हो रहा है तो मतलब एडियाबेटिक में काम हो ही रहा है ना। आर यू गेटिंग? मतलब ये आपका पिस्टन है, मान लीजिए यहाँ पे, अब ये जो है पूरा का पूरा इंसुलेटेड है, इसको बाहर से हीट वूट मिलने वाली नहीं है, तो ये जो है ना एक्सपांड कर रहा है। तो एक्सपांड कर रहा है तो कहाँ से कर रहा है? सो इट इज़ डूइंग एट द कॉस्ट ऑफ इट्स हीट प्रेजेंट इन अ सिस्टम, दैट इज़ योर इंटरनल एनर्जी। तो उसकी वजह से क्या बोलेंगे हम लोग? W इज़ नेगेटिव बिकॉज द सिस्टम इज़ परफॉर्मिंग द वर्क, सो internal energy will decrease. If internal energy will decrease, temperature will also fall. Are you getting? So everything is connected. तो adiabatic expansion के केस में work done is happening at the cost of internal energy. So therefore internal energies keep on decreasing. अगर इसी चीज़ को मैं क्या कर देता था, compression कर देता था, तो जब मैं ये compress कर देता था तो इसमें क्या होता था कि सिस्टम जो है ना कॉम्प्रेस्ड हो रहा है। तो जब सिस्टम कॉम्प्रेस्ड हो रहा है तो होने क्या वाला है यहाँ पे? एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन में आपका जो वर्क डन है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और इंटरनल एनर्जी भी आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। सो एज इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ रहा है तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, because internal energy is a function of temperature. So when the surrounding does work on the system, the energy is stored in the form of internal energy. समझेंगे नहीं? जब इसके ऊपर सराउंडिंग ने काम किया, मतलब ये यहाँ सा और नीचे आ जाएगा, कॉम्प्रेस्ड हुआ, तो कॉम्प्रेस्ड होने पे जो उसका इंटरनल एनर्जी था ना, जो इसको मतलब एनर्जी मिल रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टोर हो गई। आई होप ये क्लियर है। सो एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन के केस में वर्क डन आपका पॉजिटिव बन रहा है, इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव हो रही है, इन आपका इंटरनल एनर्जी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर, टेम्परेचर इज़ बिकमिंग हाई। तो तुम्हारे माइंड में आएगा कि यार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो जा कर वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर हो जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कॉम्प्रेशन, एंड इसके पहले हमने देख लिया एडियाबेटिक अपना expansion. Now we'll see the some calculation which we are going to get in the adiabatic process. So what can be the calculation? They can ask you to find out the internal energy and calculation of, see, calculation of delta U, internal energy का calculation एक आ सकता है,
फिर कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच अंडर द एडियाबेटिक and calculation of work done for adiabatic process. Calculation of work done for adiabatic process. For adiabatic process. Now you must have seen molar heat capacity at constant volume. इसका एक फॉर्मूला है molar heat capacity. Molar heat capacity at constant volume, इसको हम लोग CV बोलते हैं, इज इक्वल्स टू du बाय dt एट कांस्टेंट v. ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, du को इधर रखता हूँ और CV dt इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो देयरफॉर CV इंटू dt इक्वल्स टू du. ये आपका फॉर्मूला बन गया. सो CV इज़ द मोलार हीट कैपेसिटी at a constant volume, dt is the change in temperature and du is the internal energy which we can calculate it. अच्छा, अब इंथाल्पी निकालना है हमको एडियाबैटिक प्रोसेस में. तो देखिए क्या होता है, h डेल्टा h इक्वल्स टू डेल्टा, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ, h इक्वल्स टू u प्लस पी वी. h इक्वल्स टू u प्लस पी वी. अब मैंने इसको क्या कर दिया, देखो पी वी बराबर क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है. क्या होता है, एन आर टी. एन कॉन्स्टेंट है, आर भी आपका कॉन्स्टेंट ही होता है. सो इसको मैंने कर दिया डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आर को मैंने बाहर रखना है बिकॉज आर कांस्टेंट है, बिकॉज पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है. सो आर डेल्टा टी हो जाएगा. यहाँ तक समझ में आ रही है बात. अच्छा, अब ये सी आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सी वी डी टी था. ये डी और ये आपका जो डेल्टा है दोनों चेंज ही होता है. सो डेल्टा एच इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी. अब ये डेल्टा टी और डेल्टा टी को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे को मिलेगा सी वी प्लस आर डेल्टा टी. आर यू गेटिंग? अच्छा, आपने मेयर्स रिलेशन नाम सुना है, सी पी माइनस सी वी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा होगा. सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर. तो ये इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, ये आपका जो है ये इधर जा रहा है तो इसकी जगह पे मैं सी पी लिख सकता हूँ. सो देयरफॉर डेल्टा एच इक्वल्स टू सी पी डेल्टा टी. आर यू गेटिंग? मतलब फॉर्मूले का रिलेशन कैसे आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए. तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी दैट इज़ मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डी यू बाई डी टी. तो ये आप इस फॉर्म इस मॉडिफाई करके ये बन जाएगा कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी एट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. वी गॉट दिस. अब वर्क डन का भी है, तो वर्क डन में जो है उसको भी देख लेते हैं. फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, सो W जो है हमने पता है आपका, क्योंकि Q तो ज़ीरो जाता है. सो W बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सी वी डी टी है. तो ये आपका क्या है, वर्क डन है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 2. थैंक यू.